Good morning, children. So, children, in our previous classes, we have studied about the parts of brain and into how many parts does the brain is divided and what are the function of all the three parts. So, children, we have studied about brain. Now, today we will study about the types of nerves, and nerves is also a part of our nervous system. So, children, listen here. How does your brain know what it has to do? How does it get to know what did our hand touch or eyes see? What in our body help us carry message to and from the brain? It means that अगर हम लोगों को कोई भी फंक्शन करना होगा, कुछ भी चीज़ें करनी होगी, तो वो सब हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग का कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है हम लोग के मैसेज को पूरा ब्रेन तक पहुंचाने के लिए. सो चिल्ड्रन लिसन हियर. वी हैव नर्व्स इन आवर बॉडी विच कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ द नर्व्स, जो नर्व्स होते हैं हम लोग के बॉडी में, उसी के वजह से वो हम लोग के ब्रेन से लेकर के वो पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है. सो चिल्ड्रन लिसन हियर. What does the nerves look like? Do they all look the same? How many types of nerves are there in our body? So today we will study about all these things. Let us start here. Look here. A nerve is made up of many nerve cells or neurons. It means that जो हम लोग के nerves होते हैं वो बहुत ढेर सारे nerve cells से बने रहते हैं और हम लोग उनको neurons भी बोलते हैं. So the nerve cells looks like it has a head and tails, और ये head और tails के जैसे दिखते हैं. You can see here in the diagram that it has the head and the tail. A neuron is a specialized cell that receives and transmit nerves impulses. It means that जो neurons होते हैं वो हम लोग के सेल कंसिस्ट करते हैं जो हम लोग को मैसेज रिसीव करके दूसरे नर्व इम्पल्सेस में देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं. देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन. सो जो ये न्यूरॉन्स है, जो ये नर्व सेल्स है, इनके 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आर देयर पार्ट्स. द फर्स्ट वन, द सेल बॉडी. सो द फर्स्ट वन इज द सेल बॉडी. जो पहला पार्ट है न्यूरॉन और नर्व सेल्स के, वो है सेल बॉडी. Contains the nucleus. You can see here that this cell body ये contains the nucleus. ये nucleus contain करता है. After that, second one is dendrites. Carry nerves impulses into the cell body. और ये cell body से लेकर के cell body से ये हम लोग को nerve impulses message को देता है. कहाँ? dendrites को. Okay. Now after that the third one is the axon. Carries impulses away from the cell body to the another neuron or tissues. It means that ये पहले में ये था कि जो सेल बॉडी था ये मतलब डेंड्राइट्स को मैसेज देता है, बट द एक्सॉन दे टेक्स अवे द इम्पल्सेस. जो एक्सॉन होते हैं वो सेल बॉडी से इम्पल्सेस लेते हैं और फिर उसके बाद जब वो इम्पल्सेस ले लेते हैं सेल बॉडी से, तो ये एक्सॉन रहता है, ये दूसरे जो दूसरे सेल बॉडी रहेंगे ये उनको और ट्रांसफ़र करेगा. So hope so you have understood all the 3 parts of the neuron, that is the cell body, the dendrites and the axon. So let us move further. Nerves carry messages between the various organs and the brain. जो nerves होते हैं वो हम लोग को मैसेज कैरी करते हैं अपने बॉडी के वेरियस ऑर्गन से लेकर के पूरा ब्रेन तक. They are like electric wires in the body. In the picture you can see here that ये जैसे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वैसे ही हम लोग के बॉडी में होते हैं. Now let's see that into how many parts the nerves are divided. So let us see. The first one is the sensory nerve. The nerves which carry messages from the different parts of the body to the brain are called as the sensory nerve. So children, sensory nerves क्या होता है? वो nerves जो हम लोग का मतलब मैसेज को कैरी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेकर के ब्रेन तक. पहले वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से मैसेज को लेंगे, उसके बाद वो जा कर के ब्रेन में देते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज द sensory nerve. Sensory nerve you can say related to the senses.
After that, motor nerve. The nerves which carry messages from the brain to the different parts of the body are called the motor nerves. और चिल्ड्रन मोटर नर्व्स क्या होते हैं? जो हम लोग के मैसेज ब्रेन में मतलब से कैरी करता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में देता है. दे बोथ आर सेंसरी नर्व एंड द मोटर नर्व बोथ आर जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर. सेंसरी नर्व में ये था कि वो मतलब मैसेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कैरी करके पहले ब्रेन में देता है, और मोटर नर्व्स में ये है कि वो पहले मैसेज ब्रेन में रहता है, उससे कैरी करके फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे देता है. सो चिल्ड्रन, वी हैव स्टडीड अबाउट द सेंसरी नर्व एंड द मोटर नर्व. नाउ वी विल स्टडी the last one, that is the mixed nerve. Some nerves can work like both the sensory and the motor nerves. Such nerves are called the mixed nerve. और कुछ nerves ऐसे होते हैं जो हम लोग के sensory nerve जैसा भी work करते हैं और motor nerves जैसा भी work करते हैं. That's why they are called as the mixed nerve, because they are the mixture of both the sensory nerve and the motor nerve. So children, hope so up to here you have understood. Now let's study about the third part of the nervous system, that is the spinal cord. We have studied about the brain, we have studied about the nerves. Now we will study about the spinal cord. Let's see here. The spinal cord is a long rope-like part of the nervous system that connects the brain to the other parts of our body. It means that जो हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, you can see है in the diagram, ये एक लॉन्ग रोप होते हैं, जैसे रस्सी होती है लंबी सी बड़ी सी लॉन्ग रोप की जैसे, वैसे ये भी हम लोग के बॉडी में ये एकदम लॉन्ग रोप के जैसे होते हैं, जो हम लोग के नर्वस सिस्टम का भी पार्ट होता है. That connects the brain to the other parts of the body. और ये हम लोग के ब्रेन में भी ब्रेन में जाके कनेक्ट करता है पूरे होल बॉडी पार्ट तक. It is made up of millions of nerves that are bundled together. और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, you can see here that it is made up of, इसके अंदर मतलब बहुत ही millions of nerves होते हैं जो एक मतलब पूरा बंडल बनते हैं, एकदम टुगेदर रहते हैं. It is protected by the backbone. So अब जो हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ये हम लोग के बैकबोन से प्रोटेक्टेड होते हैं. सो चिल्ड्रन, होप सो यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दैट स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है. स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग रोप है जो एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो ब्रेन को मतलब दैट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो ब्रेन को भी मतलब कनेक्ट्स करता है और फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को भी एक साथ कनेक्ट करता है. और ये जो हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड है, ये हम लोग को के बैकबोन को प्रोटेक्ट करता है. ओके, सॉरी, जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हम लोग के बैकबोन से प्रोटेक्टेड है. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय आवर बैकबोन. स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय आवर बैकबोन. सो चिल्ड्रन, होप सो अप टू हियर you have understood. Now listen here. Why are the nerve cells elongated in shape? How does it help? Why are nerves so important? So children, अब ये बताओ जो नर्व सेल्स होते हैं वो हम लोग के इलोंगेटेड शेप में क्यों होते हैं, वो हम लोग के लिए हेल्पफुल क्यों है, और हम लोग के नर्व्स क्यों इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो लिसन हियर. जो हम लोग के नर्व सेल्स है, दे आर इलोंगेटेड एज दे हैव टू कैरी मैसेजेस टू अ लॉन्ग डिस्टेंस. वो इस वजह से इलोंगेटेड शेप में होते हैं, ऐसे लंबे लंबे, क्योंकि उनको मैसेज कैरी करना पड़ता है बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक. इलोंगेटेड शेप इज एन एडाप्टेशन टू डू डैट. और इसी वजह से वो इलोंगेटेड शेप में, ताकि उसको जो मैसेज कैरी करना रहता है लॉन्ग डिस्टेंस तक, वो तभी अडॉप्ट कर पाएगा जब वो इलोंगेटेड शेप में होगा. इट हेल्प्स टू कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन क्विकली. और ये मैसेज कैरी करता है ब्रेन से लेकर के पूरे बॉडी पार्ट्स तक. नाउ चिल्ड्रन, कैन यू टेल मी, अगर हम लोग के पास नर्व्स नहीं होते तो क्या होता, हम लोग के लिए के बॉडी में नर्व्स क्यों ज़रूरी है. लिसन हियर.
Nerves are important as they carry messages to and from the brain. Without the nerves, it would not be possible to perform any activities of our body. It means that हम लोग के लिए nerves इसलिए important है क्योंकि nerves के बिना कोई भी मैसेज हम लोग ना ब्रेन तक हम लोग के आ सकता है, पहुंच सकता है, ना पूरे बॉडी पार्ट में वो ट्रांसफ़र हो सकता है. That's why it is very important, and if we don't have the nerves in our body, then it would be very difficult to perform any of our activities. So that's why the nerves are very important. Now listen, what can happen if our nerves get damaged? How can our nerves get damaged? Why do we need to protect our nerves? So children, इसका ये मतलब है अगर हम लोग का नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा और हम लोग को इसको प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए. होप सो यू हैव गॉट द आंसर दैट अगर हम लोग के नर्व्स डैमेज हो जाएंगे तो क्या होंगे. If our nerves get damaged due to a fall or accident, the part of the body that it connects to the brain can stop working. It means that अगर हम लोग के nerves मतलब stop हो जाएंगे, damaged हो जाएंगे, तो हम लोग का जो brain message के जो brain से connected है, the part of the body that it's connect to the brain can stop working. तो हम लोग के जो body parts है brain से connected और भी जो other body parts है वो काम करना बंद कर देंगे. इफ़ वी डैमेज अ नर्व्स इन द फुट, अगर हम लोग के जो नर्व्स हम लोग के फुट में अगर वो डैमेज हो गए, देन वी मे नॉट बी एबल टू वॉक मूव ऑन और मूव आवर फुट. इट मीन्स दैट अगर जो हम लोग के फुट में जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाते हैं तो कोई भी पर्सन ना चल सकता है ना वो मूव कर सकता है. दैट्स वाई द नर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ नर्व्स वी कैन डू ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी. And if we do not get the message from the nerves, then we will not do a single activity. That's why the nerves are very important. So children, hope so up to here there will be no doubt. Thank you children.